Anita ji, she is also there. Oh, good morning. We have with us our chief guest, sir. Sir, I welcome you in this session. Thank you. Our patron, ma'am. Good morning, ma'am. Pratibha Good Yadav, morning. ma'am. Good Our morning. special guest, Anita Sharma, and a keynote speaker, Ripunjay Singh, sir. Please, you, Prashant, camera off करें अपना. Prashant. Ma'am, with your permission, can I start? Yes, please. Okay. I welcome you all. Good morning. In this session, Jai Hind Abhiyan. I want to tell you a little bit about our Jai Hind mission. Our Jai Hind mission Abhiyan, it is a disease awareness, administration management and implication of government policies for the treatment guidelines to the common man. इस पे बेस्ड है. ये कोई संगोष्ठी और सेमिनार नहीं है, ये एक मिशन है जो निरंतर मानवता के लिए आगे चलता जाएगा और हमारी सरकार के साथ हाथ मिलाकर काम करता जाएगा. So we are very privileged to have with us the Deputy Inspector General of Intelligence, Sadar Hadi sir, for Jai Hind, because the mission is also Jai Hind, and I am from Army ground, so we speak Jai Hind only. So Jai Hind to Pratibha ma'am, Anita ma'am, and Ripunjay Singh sir. The words are few to describe the personality of Reddy sir. So he started his career as an IPS officer. The posting details of sir are: he was circle officer in Jaipur, Jodhpur, Alwar, Anti-Corruption Bureau, Ajmer, JDA, Superintendent of Police in Sikar and Bharatpur, Deputy Commissioner of Police Traffic, and presently he is a Deputy Inspector General of Intelligence in Rajasthan government. But again, I say a few. He served in United Nations missions in Kosovo as the head of elections. And if we see the family history of the sir father, he was internationally renowned person. He was a professor in Rajasthan University, Jaipur. And sir is very lucky. She is mother, she is educationist, and she is still managing the girls' school in Moti Dungri, Jaipur. So we wish your mother a very happy, healthy life. So wife professor of head of the department in English. So has two daughters. One is doctor and another is in judiciary. And he has a son. He is also doctor. So I request you that they should also join with a mission. They are doctors. I welcome a patron, Dr. Pratibha Yadav, ma'am. Ma'am, she is also connected with police department, and she's wife of this Bhupinder Yadav sir, and she's very motivative and connecting. She give me continuous support and motivation, guidance, and she's always willing to work for humanity. She's a smile on her face is always boosting with me with energy. I welcome you, ma'am. Thank you. Our special guest is Anita Sharma, ma'am. So again, she is from my department only. She is associate professor zoology, and she is very hardworking. She has published many international and national publications. She has organized workshops. She has written many books, and previous year she got the best teacher award on Teachers Day by a previous principal, Emil Agarwal sir. I welcome you, ma'am. I welcome Professor Ripunjay Singh sir. He is today's keynote speaker, sir. And the CV is so long that I cannot explain about it. He has got doctorate from geomorphology, visiting faculty in Ambience University, Ajmer. He traveled in almost every country of the world: Nepal, Thailand, Malaysia, Singapore, Japan, Germany, Hong Kong, UK, USA, Russia. With Germany, he has completed his project. He has 50 international research publications, and he has written many leading articles in Times of India. 20 books had been written on disaster management,
He is a professor of urban development in ACM RIPA, OTS Jaipur. He has organized 225 international and national conferences. And so he is giving this training to the IS and RS in OTS. And presently his two books, that is the coffee table books, Liquor, History and Mankind, and the Alcoholic Hangover, it's has been published. So he's always willing to serve the humanity and always ready. If I give a call in the night also, he's ready to help me. So thank you for your motivation and support. And I now request our patron, Dr. Pratibha Yadav ma'am, to for the address. Thank you, Sabiha. हाँ. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एच.ए. जैदी साहब, डीआईजी इंटेलिजेंस जयपुर, प्रोफेसर जिपुंजे, प्रोफेसर ओटीएस जो आजकल ओटीएस में हैं, इस कार्यक्रम की स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अनीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, और इस कार्यक्रम की जो सूत्रधार डॉक्टर सबीहा खान, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले डॉक्टर सबीहा खान को बधाई देना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी इस बात के लिए, ये जो समाज जो इस कोविड-19 से जूझ रहा है, चारों तरफ निराशा का एक माहौल है और एक युवाओं में स्पेशली एक असमंजस की स्थिति है इस समय, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए आसपास के माहौल को देखते हुए। ऐसी सामाजिक परिस्थिति के समय में सामाजिक सरोकार से जुड़ते हुए आपने जो 5 दिवसीय ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, जो कि आप कह रहे हैं कि जय हिंद एक के बैनर के तले में, तो इसके लिए आप बहुत बधाई की पात्र हैं। एक तरह से आप सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रही हैं इस समय, क्योंकि बहुत बड़ी आवश्यकता है ये जागरूकता पैदा करना। जो ये कोविड-19 जो बीमारी है, इसमें जो मुख्य चीज है वो ये है कि जागरूकता उत्पन्न करना। इस बीमारी में प्रिवेंशन इम्पॉर्टेंट है। आपने जो ये टॉपिक चूज किया है, जो कि कोविड अवेयरनेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, ये तीनों ही बड़े रेलेवेंट हैं। अवेयरनेस, ये एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम ही है आप जो कर रही हैं, और इस के संबंध में मैं 2-3 बातें आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आपने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है, इसके मैं देख रही थी इसके प्रोग्राम्स जो आप लोग 5 दिनों में करेंगी, उसमें बहुत सारे जो पहलू हैं इस कोविड-19 से जुड़े हुए, उन लगभग सभी पहलुओं को आपने छुआ है। इसमें जो परेशानी जो महसूस कर रहा है आम आदमी जानकारी के अभाव में, वो जानकारी आप इसके अंतर्गत देना चाह रही हैं। जैसे कि मैंने देखा था आपने जो अलग अलग जो सेशंस हैं, उस सेशंस में थेरेपी से जुड़े हुए सेशन भी है, वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ सेशन भी है, आपका स्पिरिचुअलिटी भी है इसके अंदर, आपने न्यूट्रिशन के ऊपर भी एक रखा है लेक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इवन साइबर क्राइम से रिलेटेड आपका टॉपिक भी है। तो ये सारे टॉपिक इस तरह के हैं जो कि इस महामारी के समय में लोगों में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, और इस स्ट्रेस को किस तरह से रिलीज किया जाए, ये आप विभिन्न जो डॉक्टर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं इस फील्ड से जुड़े हुए, जो विभिन्न एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनके माध्यम से आप युवाओं में ये प्रचार करना चाह रही हैं, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। मैं एक बातें इसमें युवाओं को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इससे कोविड-19 से निपटने के लिए, उससे मुख्य रूप से 2-3 चीज़ें हैं।
एक तो ये कि प्रिवेंशन, सबसे पहला जो इसमें स्टेप आता है कोविड-19 से रिलेटेड, वो है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वो भिन्न समय समय पर गाइडलाइन जारी कर रही है, और इस गाइडलाइन के तहत बार बार ये बात कही जा रही है कि इस महामारी का एक ही तरीका है कि अपने आप को प्रिवेंट किया जाए, अपने आप को, इसका बचाव ही इसका इलाज है। और इस बचाव के लिए विभिन्न जो योजनाएं हैं वो विभिन्न सरकार दिशा निर्देश जारी कर रही है। जैसे कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि आप भीड़ भाड़ से बचें, भीड़ में ना जाएं। और इसीलिए जो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है, जो लिमिटेड लॉकडाउन सरकार के द्वारा लगाया गया है, डिस्टेंस मेंटेन करना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें, बार बार सैनिटाइज करते रहें, आंख के, नाक के और मुंह के हाथ ना लगाएं बार बार। ये प्रिवेंशन के लिए अब गाइडलाइन जारी करते हैं। इसके साथ ही दंडात्मक कार्यवाही का भी सरकार ने इसमें प्रावधान किया है। हम देखते हैं कि अगर जो हमारी जो पुलिस है वो बहुत अलर्ट है, इसमें पुलिस है और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, और दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि जो युवा है विशेष रूप से, जो ज्यादातर देखने में आया कि बाइक के ऊपर जाते हैं बिना वजह से, तो उसको रोकने के लिए थोड़ी सी दंडात्मक कार्यवाही भी सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा एनएसएस, एनसीसी, कॉलेज, स्कूल अपने लेवल पर सब इसके प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जो स्टेज आती है वो आती है डिटेक्शन की, यानी कि जो कोविड-19 है उसको समय के ऊपर डिटेक्ट कर लिया जाए। ये बीमारी ऐसी है जिसको कि अगर समय पर डिटेक्ट कर लिया जाए, समय पर इसकी पहचान कर ली जाए, तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। और इसके लिए जो टेस्टिंग का सिस्टम है गवर्नमेंट के द्वारा ये लागू किया गया है, बट लार्ज स्केल के ऊपर टेस्टिंग हो रही है। पहले तो दोनों ही टेस्टिंग है इसमें, RT-PCR भी है और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी इसके अंदर किया जा रहा है। तो टेस्ट के द्वारा ही ये पता लगाया जा सकता है कि जो किस एरिया में ये ज़्यादा फैल रही है और वहाँ पर फिर किस तरह से सख्ती लागू की जा सकती है। और तीसरा स्टेज आता है फिर ट्रीटमेंट का। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ट्रीटमेंट के लिए, वो हम सभी देख रहे हैं कि कितनी मेहनत गवर्नमेंट के, सरकार के द्वारा की जा रही है। हॉस्पिटल्स में सुविधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, और स्पेशली इस बीमारी में जो कमी आ रही है दवाइयों की, ऑक्सीजन की और मैन पावर की, इसको करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है हॉस्पिटल्स के द्वारा। ये तो सब गवर्नमेंट अपने स्तर पर कर ही रही है, लेकिन मेन जो चीज हमारे सामने आती है वो है कि हम इसमें क्या योगदान दे रहे हैं, हमारा इसमें क्या रोल है। क्योंकि ये सिर्फ बीमारी ही नहीं है, ये सिर्फ एक सामाजिक सरोकार इस रूप में है, क्योंकि इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, खाने पीने की समस्या लोगों के बीच में आ रही है, घरों में इतनी डेथ हो रही है कि उनमें एक जो बंधन है वो भी टूटता जा रहा है। हमारा ये दायित्व है इस समय में कि हम हमारे आसपास हमारे जो जानकार लोग हैं उनकी कितनी हेल्प कर पा रहे हैं, जो जानकार नहीं है, जो आपके सहयोग के आकांक्षी हैं, उनको हम कितना सहयोग दे रहे हैं। सरकार ने भी इस समय काफी योजनाएं भी लागू की हैं। जैसे एक बहुत अच्छी योजना अभी सरकार की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे, और मैं स्टूडेंट्स को स्पेशली इस बात की जानकारी देना चाहूंगी, जो कि हमने हमारे ग्रुप के माध्यम से भी, जो हमारे कॉलेज में ग्रुप बने हुए हैं स्टूडेंट्स के, जो मेंटर्स हैं उनके ग्रुप बने हुए हैं, उनके माध्यम से भी मैंने ये संदेश पहुंचाया था कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है ये एक बहुत अच्छी योजना है जो आपको आर्थिक सपोर्ट देती है। और पूरे परिवार के लिए है ये योजना, जिसमें कि एक परिवार के लिए 800 रुपए में आप 5 लाख तक की जो सुविधा है किसी भी हॉस्पिटल में जो सरकार के द्वारा नामित किए गए हैं, उनमें अगर आप भर्ती होते हैं तो उसका लाभ प्राप्त
कर सकते हैं। और 30 जून तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेरा इस मंच के माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स को यही कहना है कि आप अपने परिवार को मोटिवेट करें इस चीज के लिए कि ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर जरूर कराएं। ये एक बहुत अच्छी योजना है जो कि आपको एक आर्थिक सपोर्ट प्रदान करेगी। इसके अलावा अगर 2-3 चीजें और इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को जाननी जरूरी है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्टेट कंट्रोल रूम बना रखा है जिसके की नंबर आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कोरोना हेल्पलाइन नंबर 181 आप लोगों को पता होगा। अगर आपको कोरोना से संबंधित कोई भी जानकारी या हेल्प की जरूरत है तो आप 181 पर संपर्क कर सकते हैं। और टोल फ्री एम्बुलेंस आप लोगों को पता ही है 104 108 हर समय उपलब्ध है। तो ये सरकार के द्वारा बड़े लार्ज स्केल के ऊपर प्रयास किए जा रहे हैं कोविड अवेयरनेस के संबंध में भी, गवर्नमेंट ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के संदर्भ में भी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि इसकी कोरोना की जो चेन है इसको कैसे तोड़ा जाए। सारा प्रयास इसी के ऊपर है कि कोरोना की चेन को तोड़ना है। और कोरोना की चेन को तोड़ने का सबसे जो तरीका है वो यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, प्रिवेंशन रखें। अगर आप इन्फेक्टेड हैं, अगर आसपास भी आपके किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो तुरंत आइसोलेशन में चले जाएं या आइसोलेट कर दें। उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो क्वारंटाइन हो जाएं और फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करें। जो भी आपके घर में या आसपास कोई अगर कोविड से ग्रसित हो गया है, इस बीमारी से ग्रसित हो गया है, तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेम्परेचर और ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है उसको नापना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो ये कि जनरली ये होता है कि जैसे ही बुखार आता है या कोविड के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ज्यादातर लोग बिना डॉक्टर से पूछे दवा लेना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत गलत चीज है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेना इसमें ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। तो जैसे ही आप लोगों को अगर लगे थोड़ा सा भी कि कोविड के लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जनरली दूसरे के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये जो मिशन जय हिंद के अंतर्गत जो ये कार्य किया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। कुछ जो स्पेशल प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने चाहिए, जैसे कि डायबिटीज के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, या जिनका किडनी या लीवर का फंक्शन में प्रॉब्लम है या कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा प्रिकॉशन रखने की ज्यादा जरूरत है। और अगर हम डॉक्टर्स भी इस बात की सलाह देते हैं कि प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। प्राणायाम जो है, जो कि हमारे लंग्स को मजबूत करता है, ये भी एक प्राणायाम है, एक्सरसाइज है। विटामिन सी रिच फूड है, धूप में बैठना है, विटामिन डी जिससे मिलता है, अपने आप को इससे एक्सपोज जरूर करना चाहिए सन से। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि इस क्राइसिस में यूथ का सहयोग बहुत जरूरी है। और ये जो सेकेंड वेव आई है, ये सेकेंड वेव यूथ को ज्यादा प्रभावित कर रही है। हमारे आसपास ऐसा माहौल मैंने देखा है जिसमें कि युवा लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं इससे। ये जो स्ट्रेन है ज्यादा इन्फेक्शियस है, युवाओं में ज्यादा फैल रहा है। इसलिए आप टीकाकरण का जो प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, मेरा ये मानना है कि आप लोगों को उसमें टीकाकरण कार्यक्रम में सहभागिता रखनी चाहिए, टीका जरूर लगवाना चाहिए इसका।
दोनों ही केंद्र राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं इसके लिए। पुलिस और हेल्थ वर्कर्स जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनको सहयोग देना चाहिए। आप लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अपनानी चाहिए। हमारे आस पड़ोस में अगर कोई कोविड-19 से ग्रसित है या कोई परिवार पीड़ित है, तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो मेरा तो यही संदेश है हमारे बच्चों को, और कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, देश को सुरक्षित रखें और कोरोना से बचाव रखें। थैंक यू सबिहा, मेरे को Thank you, ma'am. मौका देने के लिए। थैंक यू सो नहीं, मच ma'am. आप सभी का। Over to our chief guest, Heather sir. Heather sir. Heather Reddy sir. मैम शायद वो लिंक नहीं है, आपको उनको फोन करके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी वापस। सर वी वांट यू। हाँ सर, आप एड्रेस करें सर। हाँ मैं चला गया, मैं मुझे कोई अर्जेंट काम हो गया, चला जाऊंगा। हाँ सर say from there only. नहीं, I have some urgent work. I'm going to my son-in-law's house. Oh. Okay, sir. We are very sorry, sir has a very urgent call. So he told that he will be available. If he'll be free soon, then he will come back. Otherwise, Anita Sharma ma'am. करके फोन। अनीता जी, अनीता शर्मा मैम। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, यू कैन स्टार्ट नाउ। आज के चीफ गेस्ट जेडी सर, पैटर्न एंड प्रिंसिपल एसपीसीजीसीए डॉक्टर प्रतिभा यादव मैम, रिपुंजय सर और मिशन जय हिंद को चलाने वाली डायनेमिक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सबिया खान। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं जैसे कि प्रतिभा यादव मैम ने बताया था और जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सबिया खान, उन्होंने कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं को टच करते हुए जो ये सीरीज स्टार्ट की है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मेडिकेशन और इसके जो विभिन्न पहलू हैं उनको टच करते हुए जो सीरीज स्टार्ट की है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसमें जैसे कि मैम ने कहा कि यूथ इसमें काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि आज की डेट में देखिए कि यूथ ही सबसे ज्यादा आ रहा है। इसका कारण ये है कि सबसे ज्यादा जो बाहर निकल रहा है वो यूथ ही निकल रहा है। तो मैं स्पेशली, वैसे मैम काफी कुछ इसके जो पॉइंट्स हैं उनको टच कर चुकी हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि आप कम से कम बाहर निकलें, बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है, जो भी चीजें हैं आपको बताइए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, उसका पालन करें। जब भी आप बाहर निकलें डबल मास्क पहने। आपको स्पेशली एक ध्यान रखना है तो आँख नाक टच नहीं करना है। जब भी आप बाहर रहें, घर आके ही आपको तीनों चीजों को टच करना है, क्योंकि ये जो वायरस है ये सबसे ज्यादा इसी कारण से फैल रहा है। दूसरी चीज जो मैंने देखी है कि आसपास में अगर यूथ अवेयर रहेगा, मैं भी देखती हूँ कि कई बार दूध वाले हैं, मेरे यहाँ जो काम करने वाले हैं या मेरे जो कॉन्टेक्ट के वर्कर्स हैं,
उनको वैक्सीनेशन के बारे में ही नहीं पता। वैक्सीन के बारे में पता हुआ है तो उनको लगता है हमें बुखार आ जाएगा, हमारा काम रुक जाएगा। तो मेरा मतलब ये है कि यूथ इस बारे में बताएं, खुद तो वैक्सीन लगाए में दूसरों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करें। बिना मास्क के कभी भी, एक होता है, एक अभियान चला था जब चित्तौड़ थे, तब था टोको कोरोना को रोको, यानी कि आपको खुद तो पहनना ही है मास्क, लेकिन आपको साथ वाले को भी टोकना है और इस तरह से कोरोना को आगे बढ़ने से रोकना है। यूथ अपने आप में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकता है। वैक्सीनेशन आप कराइए, आपके साथ वालों को कराइए। किस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, मैं कई बार अपने आसपास देखती हूँ कि उन लोगों को पता ही नहीं है वैक्सीनेशन कहाँ पे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। कोविड पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, इसके बाद साइट पे करना है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप आसपास के लोगों में बता सकते हैं, उनको इस चीज के बारे में अवेयरनेस जागरूक कर सकते हैं। गाँवों में देखिए तो कोरोना का बहुत बुरा हाल है, उन लोगों में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, ना ही वो टेस्ट कराने के लिए चाहते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो भी बच्चे गाँवों से रिलेटेड हैं, आप उनमें अवेयरनेस जागृत करें। मैम ने जो ये प्रोग्राम चलाया है वो एक बहुत बड़ी सामाजिक सरोकार भूमिका वो निभाने जा रही है, और मेरा शायद अगला जो होगा वो वैक्सीन पे भी होगा। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और प्रतिभा मैम का भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस सीरीज को चलाने के लिए जो सभ्या मैम को सपोर्ट किया है। तो अल्टीमेटली मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस 5 दिवसीय सीरीज के लिए। थैंक यू वेरी मच। Reddy sir, Reddy sir, police, please, it's very difficult. Reddy sir, are you available now? मैम वो हॉस्पिटल निकले हैं, वो शायद नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो Really, the police service is so difficult and they are the frontline warriors. Jai Hind to you, sir, and I salute you. The police job is really very tough. So, एक बार मैं देख लेती हूँ अगर असर का हो सके तो। Sir, I think he will not be available. So we can continue with presiding over to our keynote speaker, Ripunjay Singh sir. थैंक यू सभ्या मैम। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे लोग परिचित भी हैं आज, खासतौर से प्रतिभा मैम को। तो मैम से तो इतनी मुलाकात नहीं, पर सर से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती थी जोधपुर में जब वो यूनिवर्सिटी में थे। उसके बावजूद भी डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में कई बार मुलाकात होती रहती। अनीता मैम है, फरकंदा मैम है, कुछ लोग जो मुझे दिख रहे हैं इसके अंदर, जो जिनसे काफ़ी मेरा परिचय रहा है जब मैं आप लोगों के साथ अजमेर में था। मैं रिक्वेस्ट करूँगा फरकंदा मैम, आप अपना माइक बंद कर दें प्लीज़। आपका माइक ऑन है फरकंदा मैम, वो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। थैंक यू। हाँ, यस, नाउ इट्स ओके। So Sabya ma'am, thank you for inviting me for this session, and I know everybody has praised you, but मैं उसमें यही कहूँगा कि आपका ये जो effort है, it will bring some colors to the program, and I know you have been a very dynamic faculty for GCA and constantly working very hard for any cause in past also. तो मैं मेरा सेशन स्टार्ट करता हूँ एंड निवेदन करूंगा आप लोगों से कि इसके बीच में जो प्रेजेंटेशन मोड को है उसको आप लोग ऑन नहीं करेंगे। ये विजिबल है आपको सर? क्योंकि जब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे दिख नहीं रहे, दिखेंगे नहीं।
आप Am I लोगों के प्लीज कैमरा एंड माइक्रोफोन आप लोग ऑफ कर दो। ओके। सो आज जो मैं सेशन लेने जा रहा हूँ, बेसिकली इसको मैंने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। रीजन बीइंग कि बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए काम कर रही हैं। आप सब लोग देख रहे हैं, राजस्थान सरकार है, भारत सरकार है, विश्व स्तर पर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन बॉडीज वगैरह, जो कि इस चीज के ऊपर काम कर रही है। मैं आज जो मेरा टॉपिक रहेगा उसको मैंने 5 भागों में विभाजित किया है और बेसिकली कोविड-19 पे तो खैर मैं बताऊंगा ही आप लोगों को क्या है सिनेरियो है, इंडियन सिनेरियो क्या है, राजस्थान सिनेरियो क्या है, और उस क्लाइमेट चेंज का भी एक इम्पैक्ट है जो कि दूसरे डिजास्टर्स के ऊपर है। यूएन के क्या एफर्ट्स हैं, थोड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट पे बोलूंगा, और इन सब चीजों के ऊपर विश्व स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को आपका ध्यान है आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके ऊपर। बेसिकली एक छोटी सी एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो जनरली जब बात की जाती है कि पृथ्वी को इस हुए हुए लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स हुए हैं। अगर हम उसको ह्यूमन तरीके से देखें, अगर हम उसको डिवाइड करें तो 100 के कांस्टेंट में, तो 46 ईयर्स को अगर हम इसमें लगाते हैं, अगर पूरी पृथ्वी की अगर हम एज बताएं तो उसमें 4 घंटे जो हैं वो ह्यूमन बींग्स को इस पृथ्वी पे आए हुए हुए हैं। और पिछले 1 मिनट के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और दूसरी जो चीजें हैं उनके कारण लोगों ने आधे से ज्यादा इस पृथ्वी के वृक्ष काट दिए हैं और बहुत ही ज्यादा इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है। बेसिकली एक ह्यूमन बींग्स की कुछ नीड्स होती हैं, अगर ये सारी नीड्स अगर फुलफिल हो जाती हैं तो वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सिंपली देखें, पानी है, बिजली है, हाँ। आपकी हेल्थ है, स्वच्छता है, रिपुंजय आपका- सिंह सर, रिपुंजय सिंह हाँ, सर, हाँ मैम, रिपुंजय सिंह सर है ना, हाँ मैम, जयदी सर अभी वहां से थोड़े से बोल रहे हैं, प्लीज मैं एक आप थोड़ा सा स्टॉप करेंगे? कैन यू हियर मी रिपुंजय सिंह सर? हाँ हाँ, आई कैन हियर यू, आई कैन हियर है ना, यू। ओके, थोड़ा वो अपना थोड़ा सा एड्रेस कर दें, देन वी कैन स्टार्ट अगेन नाउ बिकॉज आफ्टर दैट ही विल नॉट बी अवेलेबल, है ना, प्लीज। नो इश्यूज, नो इश्यूज, है नो इश्यूज। ना, ओके, आई रिक्वेस्ट। हाँ, ओके सर, सर जय हिंद, रियली योर जॉब इज वेरी टफ, वी सैल्यूट यू पुलिस, सर वेलकम सर, प्लीज वी वांट योर एड्रेस, वी वेलकम जयदीप सर। हाँ, यस सर, सर यू कैन गिव योर एड्रेस नाउ। सर आपका माइक बंद है, जयदी सर आपका माइक बंद है। हाँ, हैदर सर अपना माइक ऑन करें सर। जी जी सर मैं कर माइक दिया ऑन। कर दिया। हाँ, यस जी 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 अब कैन यू हियर मी? यस सर, वी कैन हियर यू। यस, यू आर ऑडिबल सर। You're Yeah, audible. esteemed guest, Dr. Sabia, Prithivi ma'am, I'm really sorry I joined at right time, but I had some sort of emergency. So I'm extremely sorry I'm intruding in between. And it is a very nice initiative called Jai Hind. And we are suffering, we are fighting, we are struggling with this menace called COVID-19 since last more than 1 year. I've been a sufferer because I've suffered from COVID. My son, my mother, my father, my daughter, my son-in-law, my wife, everybody has gone through this trauma. And unfortunately, my father passed away. So I've seen this from very deep. I've seen this, I've felt this. I want to just, because I'm not an expert, I'm not a medical expert, but I want just to tell you about the psychological traumas, financial traumas, especially the older generation and the younger children are suffering because they are confined into
their rooms. They cannot go outside. What we were used to of the outside activities, going out, meeting friends, we are all deprived of. I've seen my father. He was quite old. He was 94. But since the lockdown, he was confined to his bed only. And because of this, he lost the will to fight. He, he had a great sense of enthusiasm, but I've seen him deteriorating, his health deteriorating, and this is what we have to look into. We have to look into our parents, how they are suffering, how can we can give solace to them, how we can develop a new strategy to be with our family, to be with our friends, even when we are not meeting physically. We should have virtual connections with them, and this is the time when we should make our life simpler, because we cannot move outside, we cannot dine outside, we cannot wear good clothes because there's nobody to look into it. So all scholars are sitting here, students are sitting here, younger generation is sitting here. I want you to develop a new lifestyle so that we can cope it, because I don't know when it will end, and if it will end, the third wave will emerge and the fourth wave will emerge. So we have to make our life adjusted according to this new this agony of nature what he has given us. And I wish you all good luck. I wish you all a very bright future, because in this, वो कहते हैं ना, उसमें जो आपकी जो आपदा होती है उसमें आप नई अपॉर्चुनिटी निकालते हैं. I've seen people working. I've seen my daughters developing. They are coming into this virtual world. They are working from home. How they are enhancing their knowledge. So I all wish you good luck, and inshallah we'll meet again. Because right now I'm in a state of emergency, and I have to leave now. Thank you, Jai Hind. Thank you, sir. Thank you for giving valuable time. Jai Hind. Kripanjit Singh sir, you can continue now. Sorry for the interruption, but it was the need of the time. Kripanjit Singh sir, can you hear me? Kripanjit Singh sir. Yes, I can hear. Yes, sir, you can start now. Yes, sir. Yes. So sorry, but it was. Now you can start, sir. Just a minute, because मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा. 1 मिनट होल्ड. हाँ, बिल्कुल, यस, ठीक है. I'm starting from where I left actually. Okay. मैं बात कर रहा था कि मानव ने इस पृथ्वी को बहुत ज़्यादा शोषण किया है, दोहन किया है, और उसके कारण जो परिस्थितियां आज हो रखी हैं वो बहुत ही ज़्यादा विकट हैं, क्योंकि ये जितनी भी घटनाक्रम हो रहा है ये मात्र 8 से 10% लोग ही हैं जो कि जिनमें लालच है, जिनमें बहुत ज़्यादा वो लोग इंथुसियास्ट हैं कि उनको कुछ आगे बढ़ के कुछ इस तरह का करना है कि जिससे कुछ ज़्यादा पैसा अर्न किया जा सके, या बट उसका अनफॉर्चुनेटली उसका 90% से ज़्यादा लोगों को उसकी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज की तारीख में एक आम आदमी को, किसी को भी ले लीजिए आप, आम आदमी के अलावा उसकी बेसिक नीड्स क्या है? उसको पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, उसको स्वच्छता मिल जाए, मोड ऑफ कन्वेंस मिल जाए, मकान मिल जाए। आज की तारीख में क्योंकि कोविड के समय में डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, आपकी कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो जाए, सस्टेनेबिलिटी आ जाए लोगों के अंदर, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, आपकी सुरक्षा हो जाए, आपके बच्चों को एजुकेशन मिल जाए, और स्वास्थ्य आपको सुविधाएं मिल जाए। ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं, 8-9 पॉइंट, जो कि अगर आपको मिल जाता है तो यू आर मोर देन हैप्पी एंड सफिशिएंट। इसके अलावा लोगों को इसके आगे अतिरिक्त कोई चीज़ नहीं चाहिए। बट फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वर्ल्ड में आज की तारीख में भी 99.9 ऐसे जोनोटिक वायरस हैं, आप में से काफ़ी जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टी हैं, वो जानते हैं कि 99.9 ऐसे वायरस हैं जिसके बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं। ये कोरोना तो जस्ट एक 0.01 है और जिसने हम सबको हिला दिया। दिस इज मेनली बिकॉज वी आर
fiddling with the things which we should not do. हम बहुत ज़्यादा वाइल्ड में जा रहे हैं, जैसे कि 70% से ज़्यादा आज की तारीख में भी जो बीमारियां हैं वो फ्लोरा एंड फौना से हो रही हैं। हम क्यों ऐसे बैक्टीरिया, इतने हजारों सालों से जो बैक्टीरिया कहीं पर था और हम उसको जाके छेड़ते हैं, भले प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, और वो इन रिटर्न जब वो वायरस के तौर पर आता है तो हम बहुत ज़्यादा विचलित और परेशान हो जाते हैं। यही नहीं, ह्यूमन जिस तरह की मैं बात कर रहा था कि 1 मिनट में हमने इस पृथ्वी को बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है। इंडिया इटसेल्फ, भारत में भी 160 स्पीसीज के 10 साल में विलुप्त हो चुकी हैं। तो दीज आर वेरी अलार्मिंग थिंग विच वी ऑल शुड नो अबाउट। रिपोर्ट भी छपी है अभी कुछ दिनों पहले जलवायु के ऊपर, और उसमें ये बताया गया है कि इंडियन कॉन्टेस्ट के ऊपर कि इंडिया विल इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन कमिंग ईयर्स। मॉनसून के अंदर जो पिछले 50 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई है, तो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स और जो वेस्टर्न घाट्स जो हमारे रीजन से जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, वहाँ पे मॉनसून के अंदर बारिश के अंदर कमी आई है। दीज आर द फीचर्स विच एंड दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन विद द मदर अर्थ। एक और रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया के कॉन्टेस्ट में अगर हम देखते हैं 75% डिस्ट्रिक्ट जो हैं इंडिया की, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे vulnerable to any of the disasters, which is a very alarming thing. और वर्ल्ड के अंदर अगर हम 576 अगर सिटीज लेते हैं, उन सिटीज में से 100 सिटीज ऐसी हैं जो टॉप 100 सिटीज हैं जो वल्नरेबल हैं एनवायरमेंटली और क्लाइमेट रिलेटेड थ्रेट से। वो उनमें 100 एशिया में है और उसमें से भी 43 इंडिया में है। तो इट्स एन वेरी अलार्मिंग एंड वी हैव टू सी टू इट। और ये जो प्रोग्राम्स हैं इनके माध्यम से मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा, अगर मैं एक माइक्रो इसमें कंट्रीब्यूटर भी बन जाता हूँ तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एक और चीज़ जो कि बार बार देखने को मिल रही है कि जो एपिडेमिक्स हैं, अगर हम 400 साल का इतिहास देखें, हर 100 साल में नेचर ने अपना हमारे साथ हमें अलार्म के तौर पर एक सूचना दी है। भले ही वो 1720 का प्लेग हो जिसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे, ये ऑफिशियल डेटा है, उस समय अवेलेबल नहीं था। बाकी भी कई ऐसे डेटा हो गए जो हमें अवेलेबल नहीं होगा। 1720, 1820, 1920 और 2020 अगर आप देखेंगे, हर 100 साल के अंदर इस तरह के घटनाक्रम हुआ है। और भले ही वो प्लेग हो या कोलेरा हो या स्पेनिश फ्लू हो, स्पेनिश फ्लू क्योंकि 1920 में आया था, उस समय कुछ ऐसे माध्यम थे जिनकी रिकॉर्डिंग्स हो जाती थी, जिनकी फोटोग्राफ हो जाती थी, अखबार छपने लग गए थे, रेडियो का प्रचलन हो गया था, लोग मूवमेंट काफ़ी हो गया था, ट्रेन का मूवमेंट हो गया था, डॉक्टर्स हो गए थे। ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके कारण पता चल जाता था। पर अभी वाली जो स्थिति है उसमें आप देखेंगे कि 16 करोड़ से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, 3 करोड़ 40 लाख लोग का डेथ हो चुकी है। तो दिस इज अलार्मिंग थिंग विच वी ऑल शुड नो। दिस इज अ कोलाज ऑफ 1920, जब उस समय भी वही चीज़ें थी जो कि अभी मैम ने बताया, अनीता मैम ने बताया, यादव मैम ने बताया कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों को प्रचार प्रसार करना, भले ही वो रेडियो का माध्यम हो या किन सब चीज़ों का हो। बट ये जो चीज़ें हैं ये कोई अभी की चीज़ें नहीं। अगर हम पिछले 60 साल का भी अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं तो वायरस हर समय ही एक्टिव रहा है, भले ही वो सार्स का रहा हो या बर्ड फ्लू के तौर पर रहा हो या सीजनल फ्लूज भी बहुत सारे इतने सारे आते हैं जो चलते रहते हैं। और ये सारे के सारे जो जितने भी फ्लूज हैं दे आर ऑल ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लोरा एंड फौना। और दिस जो अभी कोरोना के बारे में जो बात की जाती है उसमें भी कि जो मैं आपको बता रहा था कि लगभग 3 करोड़ 40 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। नो डाउट पीपल हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट, बट वी ऑल अमंग अस, जितने भी जने आप सुन रहे हैं मुझे, आप सब लोग भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ऐसे जानते होंगे कि पिछले दिनों में आपको कोई इस तरह की खबर जरूर मिली होगी कि आइदर यू मस्ट हैव लॉस्ट समबडी वेरी नियर एंड डियर टू यू और somebody is suffering from this thing. These are basic things which we all should know about it, कि ये जो वायरस है इसका बहुत कितना एक्टिव है। एक और छोटी सी एक स्लाइड मैंने यहाँ पे इसलिए डाली है कि वी ऑल टॉक अबाउट वायरस, नाउ इट इज बीन सेड दैट इट्स एयरबॉर्न, बट फिर भी जो कुछ लोग कहते हैं कि इफ एक स्नीज, अगर मैं एक छींकता हूँ
एनवायरनमेंट के अंदर, तो 10,000 ड्रॉपलेट्स मेरे आसपास रहती हैं, वो किसी भी जने को संक्रमित कर सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं खांसता हूँ तो एक खांसी में 3,000 ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर जाती हैं, तो वन हैज टू टेक केयर अबाउट इट। प्लस इट इज सेड कि स्टील है, प्लास्टिक है या कार्डबोर्ड है जिनके ऊपर, क्योंकि हम ऑफिस गोइंग हैं, स्टूडेंट्स हैं, किताबों से डील करते हैं, तो वी हैव टू सी टेक केयर ऑफ इट, और इनका इम्पैक्ट जो है वो 3 दिन तक रहता है इन सब चीज़ों के ऊपर। नो डाउट स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, मानक बनाए हुए हैं भारत सरकार ने, बहुत सारे मानक जो चीज़ें हैं जो भी मैम ने बता भी दी हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को अभी कवर नहीं करूँगा। डिस्टेंस मेंटेन करना है, वॉशिंग, हाथ धोने हैं, बाइक और पैदल को जो इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, मास्क लगाने के बारे में है, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में है, जो है घरों में रहने के बारे में है, चीज़ों को नहीं छूने के हिसाब से है, भोजन करते समय भी ध्यान रखने वाली चीज़ें कि हम लोग बिल्कुल एक ही में जगह से नहीं खाएं, दूर दूर खाएं। अभी जो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी जो ये फैला है, जो सेकंड फेज के बारे में बात जो की जा रही है, ये सिर्फ इसीलिए फैला है क्योंकि हमने एक तो बहुत ज़्यादा शादियों में गए भोजन खाया, बहुत ज़्यादा क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मनचले होते हैं, हमें अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रहता। शादियों में गए, मिले, इंटरेक्शन हुआ, कुछ ऐसे रिलीजियस फंक्शंस वगैरह हमने किए, भले वो उसको हम नकारें हमारे हिसाब से कि वो उसके कारण नहीं हुआ, बट हमें पता है कि पूरे हिंदुस्तान में कुछ इस तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज़ हुई पिछले दिनों के अंदर, और धार्मिक स्थलों पे लोग गए, मास माइग्रेशन हुआ, और ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे, और यहाँ तक कि हो गया कि उसका नाम भी इंडियन दे दिया गया है कि अभी जो वायरस है इट्स एन इंडियन वायरस। तो ये जब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर वी हैव टू सी टू इट। एक जनरल सिनेरियो मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड वॉर, जैसे मैंने बताया कि आपको 16 करोड़ से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं आज की तारीख में भी, वर्ल्ड में 1 लाख से ज़्यादा लोग इन वेरी सीरियस, एंड दे कैन गो टू दिस फिगर, जो 3,39,000 का जो फिगर है उसमें कभी भी एड ऑन हो सकते हैं। बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो यू कैन सी दिस फिगर विल बी वेरी हाई। और वर्ल्ड सिनेरियो में जब हम देखते हैं, जब मैं बात करता हूँ, नो डाउट यूएस में सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं, ब्राज़ील में कभी नंबर 2 पे था, अब हम उसको हमने भी पछाड़ दिया है, और बहुत जल्दी अगर हम यही चीज़ें चलती रही तो वी कैन इवन सरपास यूएस। बट हमारे लिए बस थोड़ा सा एडवांटेजेस जो चीज़ रही कि वो डेथ पर पर्सन रही। आप देखेंगे कि ये जो फिगर है 197, ये कुछ दिनों पहले 97 था, और अब ये एक महीने के अंदर ये 100 बढ़ गया है पर मिलियन डेथ। तो दिस इज एन अलार्मिंग। आप देखेंगे यूएस के अंदर 1800 डेथ होती हैं 1 मिलियन के अंदर, ब्राज़ील में 2000 से ज़्यादा होती हैं, फ्रांस में 1600 से ज़्यादा होती हैं, यूके, इटली, स्पेन, किसी भी कंट्री को ले लीजिए आप, देयर डेथ पर मिलियन इज वेरी हाई। बट हमारे इंडिया के अंदर हम वी आर लकी, फॉर्चुनेट कि अभी जो हैं नंबर ऑफ डेथ जो है, पर अब आप देखेंगे पिछले एक दिन लास्ट 24 आवर्स में 4000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है। इट्स एन अलार्मिंग, वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज। इस चीज़ के ऊपर ध्यान सोचने की बात बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। इसके अलावा आप देखेंगे कि वर्ल्ड में जो पॉकेट्स बनी हुई हैं, यूरोप एज अ हॉटस्पॉट, या यूएस एज अ हॉटस्पॉट, या एशिया एज अ हॉटस्पॉट, उसके अंदर हम लोगों की क्या स्थिति बनती जा रही है। आज की तारीख में वर्ल्ड के 15% से ज़्यादा कोविड पेशेंट्स इंडिया के अंदर है, यूएस में भले ही 20% है, बट ये जो 15 जो था, ये फिगर 8 तक आ गया था मार्च के पहले तक, 1-1.5 महीने पहले तक, बट ये इतना बढ़ गया है। मात्र वर्ल्ड की 4 कंट्रीज में 50% से ज़्यादा कोविड पेशेंट्स हैं। यूरोप को अगर हम ले लेते हैं तो बहुत बड़ा चंक है, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रांस है, टर्की है, रशिया, यूरोपियन रशिया है, यूके है, इटली है, ये जो नेशंस हैं, ये देयर इट्स अ बिग हॉटस्पॉट रीजन। तो इन सब चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो ग्राफ बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि यूएस का ग्राफ जो है नाउ इट इज़ कमिंग टू कांस्टेंट, वहाँ पे सब लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, मात्र 15 करोड़ लोगों को ही अभी तक स्टेज 1 और स्टेज 2 के वैक्सीन लग चुके हैं, और उसमें भी बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको डबल वैक्सीन लगे हैं। अभी लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं, अलग अलग तरह की गाइडलाइन सरकार को जारी करनी पड़ रही है कि कौन सा वाला वैक्सीन लगाएं, लोगों को सचेत करना पड़ेगा। अभी गाँव की बात हो रही थी कि वहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरह से उनके वैक्सीन लगेगा।
अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं कि किसी को कोई कह रहा है मुझे बुखार हो जाएगा, कोई कह रहा है मुझे पेन होएगा, बॉडी पेन होएगा, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। इन सब भ्रांतियों को हम जैसे लोग जो कि इस चीज को समझते हैं, देखते हैं, वो ही उस चीज को वो कर पाएंगे। सबिया मैम, आपको अपना माइक बंद करना पड़ेगा प्लीज। अच्छा को हाँ, थैंक यू। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा यही बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया कि 27 लाख से ज़्यादा डेथ्स हमारे यहाँ हो चुकी हैं। और ये जो ग्राफ था जो कि बहुत पिछले 20 दिनों के अंदर, सॉरी 1 हफ्ते के अंदर 20% डेथ जो है वो बढ़ी हैं। और केसेस नो डाउट वापस जो लूप है वो वापस नीचे आने लगा है, आप इसमें देख रहे हैं। बट दिस इज, ये ऐसी चीज को हमें खुशी मनाने की चीज नहीं है कि ये नीचे आ रहा है। ये एक समय ऐसा था जब ये बिल्कुल ही नीचे आ गया था, नंबर ऑफ केसेस पर डे बहुत कम हो गए थे, नंबर ऑफ डेथ्स पर कम हो गई थी। बट एक ऐसा है कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा फ्री हो गए और हमने इस चीज़ को, सेकेंड वेव को प्रिडिक्ट नहीं किया और हम लोग बहुत लाइटली हमने इन चीज़ों को लेने लगे। नो डाउट महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, और राजस्थान भी उससे कोई अछूता नहीं है। आज सुबह के जो लेटेस्ट फिगर हैं वो 6,777 डेथ राजस्थान के अंदर हो चुकी थी। तो ये, और ये पिछले महीने ये 2800 थी, तो एक महीने के अंदर 3,000 से ज़्यादा डेथ होना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं स्टेलिन का एक कोट जरूर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मार्च में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें जब कोविड के, जब आपने 1920 की बात की थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उन्होंने यही बताया था कि अगर इंडिविजुअल किसी के साथ होता है तो इट्स अ ट्रेजेडी, अदरवाइज इट्स अ स्टैटिस्टिक। तो वी डोंट वांट दैट ट्रेजेडी शुड अकर विद अस। और स्टैटिस्टिक्स भी जो है वो दूसरों के हिसाब से अच्छी लगती है, बट इंडिविजुअली जब हम काम करते हैं, जो सोचते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जनरली इस कोविड काल को जो फेज था, इसको 3 फेज के अंदर डिवाइड किया गया लोगों ने जब इसको माना महामारी के दौरान। एक वो फियर जोन था, जब आपको ध्यान होगा पिछले साल मार्च में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि कल से लॉकडाउन रहेगा। एक भय का दौर था, लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, एकदम डर गए थे, बहुत चीजें इकट्ठी करने लग गए थे, परेशान हो गए थे, घरों में स्थिति हो गई थी। वही स्थिति आज की जैसी स्थिति है, इस बार पहले बार से ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, ज़्यादा लोग वो हुए हैं। बट पहले हम ज़्यादा सचेत थे, हम लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया, तो इसलिए कैजुअलिटीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे कम हुई। बट इस बार हमने उसको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया, यहाँ ठीक है, मुझे तो नहीं होगा, दूसरे को हो जाएगा, बट वैक्सीन लग गया है मुझे तो बहुत फ्री हो गया है। वैक्सीन लग जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम बाजार में खुले तरीके से घूमूं। या आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने के अंदर 144 से ज़्यादा डॉक्टर्स की डेथ हुई जिनके दोनों वैक्सीन लग चुके थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लग गया है तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो गया हूँ। तो ये इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देने वाली ज़रूरी चीज़ है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करने लग जाऊँ, कोई दवाइयाँ इकट्ठी कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है। मेरे एक मित्र से अभी तो नहीं, पिछले वाले फर्स्ट फेज वाले में बात हुई थी, वो बोले मैं रिलायंस गया और वहाँ से टॉयलेट पेपर की एक बोरी उठा के लिया है। मैंने कहा क्यों? बोले क्या पता कल से पानी बंद हो जाए या कल से कोई चीज़ें मुझे मिले नहीं मिले। तो अब वो दूसरों को टॉयलेट पेपर बांटते फिर रहे हैं एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट कि भैया मेरे पास इतने सारे पड़े हैं, मेरे तो काम आए नहीं। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि एक ऐसा फेज भी था जब हमें जो भी चीज़ सामने मिली हमने उसको ग्रैब की। उसके बाद एक सेकंड फेज आया था, सीखने का फेज आया था, जब हमने उसमें वैक्सीन के ऊपर काम किया, हम लोगों ने लोगों को भोजन बना के देने की स्थिति। ये स्थिति आज वाली स्थिति के समान ही है जो कि पिछले साल अगस्त सितंबर के अंदर आई थी, कि हम लोग मदद कर रहे थे, लोगों को खाना दे रहे थे, लोगों की स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे, हम विनम्र हो गए थे, हम रिलीजियस प्रोग्राम्स देखने लग गए थे, हम बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए थे कि हमें दूसरों के दुख दर्द के बारे में हम लोग सोचने लगे। तो सीखने का चरण था वो एक दूसरे तरह का। और फिर उसी समय में ऐसी ऐसी चीज़ें आई कि हम उस समय जो कहते थे कि समय को मैं धन मानता था, टाइम इज मनी में बात करता था, बट उस समय जो क्या बच जाऊं, जीवन हो जाए तो मेरे लिए वो चीज़ है। मैं जल बचाने की बात करता था, बट आज मैं कहता हूँ 20 सेकंड तक हाथ धो, कोई बात नहीं, पानी बह रहा है तो। मैं शराब के बारे में कहता था बहुत बुरी चीज़ है, आजकल 70% सैनिटाइजर की बॉटल में हर समय हाथ में लेके घूमता हूँ। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हम करने लग गए।
अतिथि देवो भव की बात करते थे, अब अतिथि को कहते हैं तू बाहर ही खड़ा रहे, बाहर से ही चला जा, नहीं चाहिए मुझे घर के अंदर। आदमी इस मोबाइल की तरह से हो गया, जैसे कि उसके अंदर सारी चीजें हो, उसका बैंक हो गया, उसकी एजुकेशन हो गई, उसकी परचेजिंग उसके अंदर हो गई, वो म्यूजिक, टीवी, पिक्चर वगैरह सब उसमें देखने लगा। बट इसका एक इम्पैक्ट भी ये पड़ा कि अगर ह्यूमन बींग्स के ऊपर, अगर मैं गर्दन को 60 डिग्री तक घुमा के रखता हूँ, नीचे दबा के रखता हूँ, मेरी गर्दन के ऊपर 27 केजीज का वेट आता है। दैट मीन्स आई एम स्पॉइलिंग, मेरी जो गर्दन है वो वापस वही वाले बंदर वाले युग के अंदर में वापस जाते जा रहा हूँ, जो युग जो मैंने कई हजार साल पहले छोड़ दिया था। मेरी माई स्पाइन विल बेंड एंड आई विल फेस द प्रॉब्लम। मैं जिस बारे में बात कर रहा था कि आज मैं घर पे रहने की बात करता हूँ, घर में कोई आ जाता है तो मैं उसको यही कहता हूँ, मेरे को चाय नाश्ता नहीं पूछता हूँ, मैं उसको ये कहता हूँ भैया तू काढ़ा पिएगा, ये भाप लेगा, तू घर के गेट से ही वापस चला जा। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जिसको कि वी हैव सीन इन दिस फेज, द थर्ड फेज के अंदर हमने जिस चीज के बारे में देखा, ये वो विकास का चरण था। नाउ दिस फेज, थर्ड फेज, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि हमें वापस खड़ा होना है, हमें वापस चीजों को समझना है, हमें चीजों को लाइटली नहीं लेना है। जो हिंदुस्तान एक तरह से लेट गया था उसको हमें वापस करना, ये हमारे खिलाफ एक तरह का युद्ध है जिसको हमें जीतना है। और ये इंटरनली हम इस चीज को अगर एक होंगे तो हम उस चीज को हम कर पाएंगे। हमें जो अभी हम बार बार बात कर रहे थे, पुलिस की बात कर रहे थे, हम डॉक्टर्स की बात कर रहे थे, हम सोशल वॉलंटियर्स की बात कर रहे थे, हम खाना देने वालों की बात कर रहे थे, देयर आर सो मेनी पीपल जो कि अपना अपना कंट्रीब्यूट करके देश को वापस पटरी पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या यूएन, इंटरनेशनल बॉडीज, कोई भी हो, तो दे आर वर्किंग ऑफ फॉर दिस गोल। और ये जो ग्रोथ का जोन है, जो थर्ड फेज जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमें इस ग्रोथ वाले जोन के अंदर हमें वो अब आने वाले समय में हमारे उद्देश्य खोदने पड़ेंगे। मैं क्या मेरे उद्देश्य होंगे, मैं किस तरह से मैं आगे आगे बढ़ पाऊंगा, जो सपने आपने देखे थे उनको किस तरह से आपको ऊपर वापस उनको देखना पड़ेगा, उनको साक्षात करना पड़ेगा। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए थे, गोल्स जो आपने किए थे, वो आप किस तरह से अचीव करेंगे, और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लाइफ के, वो सारी चीजें। और आपको इन सब चीजों के साथ देखते हुए आपको वापस जो है ग्रोथ जोन के अंदर आना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम सब लोग मिलके इस काम को करें, अन्यथा हम लोग वापस पीछे रह जाएंगे। और यही चीज है कि 2020-21 में हमें क्या क्या मिला। हमें कई चक्रवात मिले, ये तो कह रहे नया चक्रवात आ रहा है, पर इससे पहले भी हमें बहुत सारे तमिलनाडु, केरला में मिले। हमें बहुत तनाव हुआ, बहुत सारे हमारे साथी हमें छोड़ के चले गए, यहाँ तक कि कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। अब भले ही आप सुशांत सिंह राजपूत का लें या किसी और का नाम ले लें, बहुत सारे लोग हमें, वो भले ही कोरोना से नहीं गए, डिप्रेशन से चले गए, वर्क नहीं था, भारत चीन की जो संबंध थे उनके बारे में भी था, आज फिर आया है कि वापस चीन का जो प्रॉब्लम है वो वापस एग्रीवेट होने लगी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमें जो दी हैं, बट इसके अलावा हमें बहुत सारी जो चीजें हैं, पॉजिटिविटी भी हमारे अंदर आई है। हम पुरानी चीजों को लेके ही नहीं कर सकते। प्रदूषण कम हुआ है, हम लोग महत्व समझने लग गए हैं, हम रिलेशंस को समझने लग गए हैं, हम एक दूसरे के प्रति जागरूकता लेके आए हैं, मानसिक जो तनाव था उसके अंदर हम ध्यान लगाने लग गए हैं, हम ऐसी बचत करने लग गए हैं, और जीवन का मूल्य समझने लग गए हैं। ऐसी ईश्वर के और अल्लाह के प्रति, गॉड के प्रति हमारी जो भावना थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि हाँ ठीक है, हम उनको अब याद करें, क्योंकि हम ये जो स्थिति पैदा की हमने ही की है। तो अमीर गरीब के बीच की जो चीज़ें थी वो भी कम होने लगी हैं, क्योंकि नो डाउट द गैप हैज़ इंक्रीज्ड, बट उस चीज़ के बारे में भी हम समझने लगे। बहुत सारे दानदाता हैं जिन्होंने हर लेवल पे जाके बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो यही चीज़ नहीं कि जिस चीज़ के बारे में मैं कह रहा था कि हमें प्रकृति को समय देना पड़ेगा। ये विश्व स्तर के ऊपर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, भले ही हम अर्थ डे बनाए या पर्यावरण दिवस बनाए, 5 जून का कुछ भी बनाए, बट उसके अंदर जितने भी लोग हैं उन सबका यही मानना है कि हमें इस पृथ्वी को समय देना पड़ेगा, और अगर हमने समय नहीं दिया और अपने आप को समय नहीं दिया तो भी हमें उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये हमारे लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली जो चीज़ है वो रहती है। उसके अलावा यूएन के बारे में जिस समय मैं आपसे बात कर रहा था, द नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे इंडेक्स में जो था, कि परिस्थितियों को देखते हुए, क्लाइमेट की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सारी स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, मानव की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, इस ग्रह की जो प्रॉब्लम है, जैव विविधता के ऊपर बहुत बहुत प्रॉब्लम है, परिस्थिति की तंत्र खराब हो रहा है, प्रदूषण जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी
तो क्योंकि दुनिया के स्तर के ऊपर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कई जगह रेनफॉल्स हो रही हैं, कई जगह हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, बहुत सारे डिजास्टर्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बात, क्योंकि आज ह्यूमन बीइंग इस ब्लेड के ऊपर बैठे हुए स्नेल के जैसे, अगर वो पीछे जाता है, यहाँ से अब मैं आज से गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं आज से ये नहीं करूंगा, तो वो पीछे नहीं जा सकता, और आगे बढ़ता है तो क्लाइम पर्यावरण को खराब करता है। तो सस्टेनेबिलिटी लाइफ में लेके आना बहुत जरूरी है। अगर वो सस्टेनेबिलिटी में लेके नहीं आता हूँ तो मैं स्नेल की जगह आगे गया तो भी कटता हूँ, पीछे गया तो भी कटता हूँ। तो आई हैव टू रिमेन एट द प्लेस एंड सी टू इट कि मैं बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल चीजें मैं क्या कर सकता हूँ। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, यूएन ने भी सर्वे कराया था एंड आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। उसके अंदर अलग अलग एज वर्ग के लोग थे, युवा भी थे और वो भी थे, बट उसमें सबसे ज्यादा जो लोगों की जो वोटिंग थी, 3 घंटे के लिए लाइन खुली थी और उसमें 5.97 लाख लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहला पॉइंट सब लोगों ने जो एक शुभ आवाज में जो कहा कि स्वास्थ्य सेवा जो है उसके ऊपर हमें महत्व देना पड़ेगा, और वो आप देख भी रहे हैं। ये अक्टूबर नवंबर के अंदर बात कर ली थी कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं को देखना पड़ेगा, और आज अगर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अगर हम उसको कंट्रोल कर ले तो आज ये वाली स्थिति हमारे बीच में नहीं होती। उसके अलावा बाकी चीजें भी थी। प्लस आने वाले 25 सालों को हम किस तरह से देखते हैं, हमें क्या चीजों के ऊपर महत्व देना चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब आप ये देखेंगे कि पर्यावरण को सुधारने के लिए लोगों का यही मानना है कि अगर 25 साल तक हमें किसी चीज पे काम करना है तो हमें इस एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए करना है। मानव अधिकार, ह्यूमन रिलेशंस हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षाएं, बाकी चीजों को उन्होंने कैटेगरी 2, 3, 4, 5 में रखा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ह्यूमन बींग दे शुड टेक केयर ऑफ दिस मदर अर्थ। प्लस एक और सर्वे हुआ, बहुत ही अलार्मिंग सर्वे था। उसके अंदर 18 साल से कम के बच्चों का सर्वे हुआ, ये अभी जनवरी 26 को हुआ था, यूएन ने करवाया था। और इसमें करीबन 56 कंट्रीज के 64 कंट्रीज के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और आपको ताजुब होगा कि उन सब बच्चों का जो जिनको भी आगे चल के जीवन रहना है, जिनके अभी तक कोविड के बारे में उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, जिनके कोई वैक्सीनेशन के बारे में नहीं सोच रहा, जिनकी किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा, उसमें मैक्सिमम लोगों का यही चीज था कि वी हैव जो ग्लोबल इमरजेंसी है क्लाइमेट चेंज की, वी हैव टू सी टू इट। उन्होंने इकोनॉमिक्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, खाना, इन सब चीजों ऊपर किसी के ऊपर नहीं बोला। उनका सिर्फ यही मानना था कि फॉरेस्ट लैंड को उसको बचाओ, रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर बात की उन्होंने, और जो फार्म टेक्निक्स और ये सब चीजें हैं उनके कन्वेंशनल मेथड्स को यूज करने की बात की, ग्रीन बिजनेस के बारे में बात की। ये जो वोटिंग हुई थी इस सब के ऊपर, इन सब चीजों के लोगों का, ये उन बच्चों का बात है जो ना तो ड्राइविंग करते हैं ना वोटिंग करते हैं, और जिनको आगे चल के इस पृथ्वी के ऊपर रहना है, तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जाती है। यहाँ पे मैं एक परिभाषा जो चीज है, जनरली हम डिजास्टर के बारे में बात करते हैं। डिजास्टर क्या चीज है? डिजास्टर में वही है कि ह्यूमन, जानवर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी एग्रीकल्चर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी प्रभावित होती हैं। उसके साथ यही चीज नहीं, और उसमें एक चीज और है कि जब कोई चीज हो जाती है तो मुझे मुझे बाहरी हस्तक्षेप चाहिए, मुझे कोई बाहरी मदद चाहिए, तब मैं उसको डिजास्टर की कैटेगरी में ले सकता हूँ। अगर बाहर निकलते हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, 4 जने खड़े हुए और वो उस 4 जनों ने उस आदमी को उठाया, या तो एम्बुलेंस में डाला, या गाड़ी में डाला, टेम्पो में डाला, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, दैट इज नॉट अ डिजास्टर। बट अगर 5,000 लोग खड़े हुए हैं, 10,000 लोग खड़े हुए हैं और कोई बाहर ऑयल टैंकर गिर जाता है, उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, पुलिस चाहिए, सिविल डिफेंस चाहिए, टैंकर वाली कंपनी चाहिए, क्रेन मशीन चाहिए, हेल्प चाहिए। ये इतने सारे लोग होने के बावजूद भी उसको खड़ा नहीं कर सकते, दैट इज एन डिजास्टर। जहां आपने उस चीज को करने के लिए, उस ऑयल टैंकर को सीधा करने के लिए आपने किया। भारत सरकार की एक समिति बनी हुई है, हाई पावर कमेटी बनी हुई है, और उन्होंने इंडिया में होने वाले डिजास्टर्स को कैटेगराइज कर रखा है। और इस कैटेगराइज करे हुए जितने भी डिजास्टर्स हैं, इसके अंदर जैसे पानी से रिलेटेड जो है ये 11 डिजास्टर्स हैं, बाढ़ है, चक्रवात है, बवंडर है, ओलावृष्टि वगैरह, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इसके बाद जियोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं, जो लैंडस्लाइड्स है, भूकंप है, ये सारे डिजास्टर जो इंडिया में होते हैं वाले हैं। इसके अलावा बाहर एक्सटर्नल कोई होते हैं, हमने उस चीज को नहीं इसमें इंक्लूड किया है। और इसके अलावा केमिकल्स और इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर डिजास्टर्स हैं, जो कि केमिकल के तेल पलट जाना या ऑयल टैंकर का गिर जाना, न्यूक्लियर रेडियोलॉजिकल जो है वो है, राजस्थान के अंदर भी न्यूक्लियर प्लांट है रावत बाटा का। तो ये सब चीजें जो है जिनके ऊपर देखने की चीज है, और इंडिया में
कितने प्लांट्स हैं, उन सब की सिक्योरिटी और उन सब चीज़ों को ध्यान रखने वाली चीज़ें। एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स कैन बी रोड एक्सीडेंट्स, प्लेन एक्सीडेंट्स, ट्रेन एक्सीडेंट्स, रोज हम देखते हैं। और त्योहारों पे होता है, भगदड़ मच जाती है, सामूहिक भोज हो रहे हैं, ड्रिंक्स, दारू पार्टी चल रही है, और वहां पे कितने सारे, अभी ये सारे के सारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी का ही एक पार्ट बनते हैं। इसके अलावा फिफ्थ कैटेगरी जो आती है वो बायोलॉजिकल जो है, जिसमें जैविक और महामारी, जिसके अंदर अभी हम इसके बारे में आज ये कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप कर रहे हैं। और कीट हमले हैं, टिड्डियों के हमले जो हमारे यहाँ पे राजस्थान में सर्किट होते हैं। एनिमल डिजीजेज हैं, अपने पिछले दिनों में देखा, घोड़ों की बीमारी, गायों की बीमारी, जितने भी जानवर हैं, किसी भी जानवर का नाम ले लीजिए, उससे संबंधित जो है, डॉग्स के से है या स्वाइन से है, किसी भी चीज सबकी बीमारी, एंड फूड पॉइजनिंग एंड एक्सेट्रा, ये सब चीजें इसमें आती है। एक क्लाइमेट चेंज के बारे में जब मैं बात कर रहा था, एक रिपोर्ट बनी है भारत सरकार की, उसके अंदर इन सारे डिजास्टर्स को लिया गया है। बेसिकली जो राइज इन टेम्परेचर उसके ऊपर बात की गई है, नंबर ऑफ इंक्रीज इन साइक्लोन उसके ऊपर बात की गई है, सी लेवल राइज उसके ऊपर बात की गई है कि हमारा हिंदुस्तान का 28% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो रहती है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल और आंध्रा, इन सब स्टेट्स की जितनी भी पॉपुलेशन, जितनी भी एक्टिविटीज, सारी की सारी पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली समुद्र के ऊपर बेस्ड है। सी लेवल राइज होगा, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तूफान आएंगे तो इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके ऊपर पड़ता है या इनलैंड एक्टिविटीज के ऊपर पड़ता है। तो इन डिजास्टर्स को जो है जनरली हमने इसे 3 भागों के अंदर रखा है। एक तो कि प्रिपरेटरी, हमने प्रिपरेशन क्या की, जैसे अब कोविड के बारे में भी अगर हम ले तो हमने क्या प्रिपरेशन किए, क्या क्या चीजें हमारे पास थी। और सेकंड वो ये कि जब हो रहा है, वो चल रहा है, तो हमें उसको क्या करना है। थर्ड वो कि जब हो जाए, चल होके खत्म हो जाएगा, तो हमें उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है। कोई भी डिजास्टर ले लो, अगर सूखा लेंगे तो हो सकता है कि हमें इस साल बारिश कम हुई तो हमें पहले से मालूम रहे कि हमें पहले से क्या तैयारी करनी है। तूफान आया तो शॉर्ट पीरियड है, हमें हफ्ते भर का टाइम मिला, हफ्ते भर के अंदर हम क्या चीज कर सकते हैं। तृतीय ये कि ऐसा हो जाता है ऑन द स्पॉट, एक्सीडेंट हो गया, ब्लास्ट हो गया, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, तो ऐसी कोई भी चीज हो जाएगी तो वो उसी का ही एक पार्ट बन जाएगा। तो ये 3 फेजेस हैं इसके, जिसके अंदर वो देखा जाता है, और इसका इम्पैक्ट जो है ह्यूमन बींग्स के ऊपर डायरेक्टली भी पड़ता है, इनडायरेक्टली भी पड़ता है, और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे कोविड का ही ले लें तो बहुत ह्यूमन लाइफ गई, जानवरों को हम नहीं देख पा रहे हैं, अब पावर, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, बच्चों की एजुकेशन वगैरह पे फर्क पड़ा है। इनडायरेक्टली वे मिले तो एग्रीकल्चर के ऊपर ले लें, या इंडस्ट्रियल आउटपुट के ऊपर ले लें, या लोगों की अर्निंग्स के ऊपर ले लें, या अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ले लें, वो वाली बात आ जाती है। फिर एक लॉन्ग टर्म होता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत दूरगामी क्या रहेगा, भले ही वो किसी चीज़ का हम बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। इंडियन कॉन्टेस्ट के अगर अंदर हम लेते हैं तो वर्ल्ड के अंदर हम तीसरे नंबर पे डिजास्टर्स के ऊपर आते हैं। नो डाउट सबसे ज़्यादा चाइना में होते हैं, यूएस में होते हैं, बट पिछले 20 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एनवायरनमेंट रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड जो है, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के ऊपर जो है, वो पिछले 20 साल के अंदर जो है वो 321 हुए हैं, और जिसके अंदर लगभग 80,000 लोगों की डेथ हुई है, और 108 करोड़ लोग उससे प्रभावित हुए हैं। ये जो डिजास्टर्स हैं इसके, ये सिर्फ वो हैं, एक्सीडेंट्स और वो चीज़ें नहीं आई हैं इसके अंदर, इसमें सिर्फ क्लाइमेट रिलेटेड है, जैसे जिससे मैंने बताया था, बाढ़ है या तूफान है या इस तरह के नेचुरल कैलेमिटी कोई हुई है, अर्थक्वेक है, तो उसके कारण ये चीज़ें इसका पार्ट बनती है। डिजास्टर्स की जैसे मैंने बताया, अगर मैं 16 से अगर मैं काउंट करना शुरू करता हूँ तो वही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वही हमारे यहाँ तूफान है, वही जंगल की आग है, वही हमारे यहाँ कोल्ड वेव्स हैं। तो ये जो लिस्ट जो मैंने आपको पहले बताई थी, 17 का अगर मैं लेता हूँ तो वही सेम है। फायर एक्सीडेंट्स हैं, बॉम्बे में हुई थी, ऑयल स्पिल हुआ था चेन्नई के अंदर, ये सारे के सारे जो डिजास्टर्स हैं इसका पार्ट बनते हैं। 18 के अंदर मेगा डस्ट स्टॉर्म आया था, उसके अलावा भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, मेजर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी, प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था, ब्रिज कोलैप्स वगैरह हुए थे। 19 के अंदर एक नई चीज़ शुरू हुई थी, उस समय तक आते आते हमारे यहाँ हीट वेव्स हैं, हमारे यहाँ ओलावृष्टि है, हमारे यहाँ वज्रपात, बिजली गिरने आए, इनकी फ्रीक्वेंसीज जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। और यहाँ तक कि पृथ्वी के ऊपर 19 के अंदर 35 लाख से ज़्यादा बिजली, रिकॉर्डेड बिजली जो थी वो गिरी, और यहाँ तक कि आर्टिक और एंटार्क्टिक में भी बिजली गिरने के
जो साइंस है वो देखने को मिले। 20 के अंदर आपने देखा दिल्ली में राइट्स हुए, कोरोना, ये सब चीजें तो रही, टिड्डियों के हमले हुए हमारे यहाँ पे, और इस बार पहली बार हुआ तो उसका इम्पैक्ट जो था वो छत्तीसगढ़ तक देखने को मिला। कि जो टिड्डियाँ थी वो पहले तो राजस्थान तक आके ही खत्म हो जाती थी, वो महाराष्ट्र और को क्रॉस करते हुए, यूपी को क्रॉस करते हुए बिहार और छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई। तो ये जो चीजें थी, प्लस इस साल की अगर मैं बात करता हूँ, 21 ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4 महीने ही हुए हैं, बट इसके अंदर भी कोविड हुआ है। अभी नया ब्लैक फंगस स्टार्ट हो गया है, कोविड के बाद वाली चीज़ें, इसके ऊपर ध्यान देने वाली चीज़ें। कर्नाटक के अंदर मेजर एक्सीडेंट हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था अभी चमोली के अंदर, इसमें लगभग 250 से ज़्यादा लोग बह गए थे, डूब गए थे। फॉरेस्ट फायर्स अभी चल रही हैं, आज की तारीख में टेरी में चल रही है, और मिजोरम के अंदर लुंगदिल के अंदर भी अभी आज की तारीख में भी देयर इज अ फायर गोइंग ऑन। अर्थक्वेक असम के अंदर अभी 6.4 मेगावाट का अर्थक्वेक देखने को मिला था रिक्टर स्केल के ऊपर। लाइटनिंग साउथ बिहार के अंदर पिछले हफ्ते हुई, साउथ बंगाल के अंदर इलेक्शन से इमीडिएटली बाद, और काफी कैजुअलिटीज उसमें हुई हैं। क्लाउड बस्ट हो चुके हैं 2 बहुत बड़े, देवप्रयाग में आपको पता है, टेरी में हुआ, ऋषिगंगा के ऊपर हुआ था, टेरी में तो अभी 4 दिन पहले ही हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिल रही है। साइक्लोन, नो डाउट दिस साइक्लोन इज कमिंग, अभी महाराष्ट्र कोस्ट पे, गोवा कोस्ट पे देखने को मिल रहा है, कल परसों गुजरात में आ जाएगा। राजस्थान के अंदर भी जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान की, सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, और बांसवाड़ा है, पाली है, ये इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होएगा। इसके अलावा सेकंड फेज की जो है जयपुर और जो अजमेर रीजन है वो थर्ड फेज के अंदर जितने ज़्यादा नहीं होगा, पर हाँ तेज हवा और बारिश तो वहाँ पे भी हमारे यहाँ पे वेडनेसडे तक एक्सपेक्ट की जा सकती है। एक और चीज़ जो कि अभी चमोली वाले की मैं बात कर रहा था, सैटेलाइट इमेज है, पिछले साल और इस साल की आप स्नोफॉल कवर को देखिए, एक ही दिन की ली हुई है। जो चमोली एक्सीडेंट हुआ था उससे जस्ट एक दिन पहले की बात है। तो क्योंकि स्नोफॉल जो है वो नहीं हुई, बहुत कम हुई, तो लैंडस्लाइड्स और ये सब चीज़ें जो हैं, एवरलांचेस जिन्हें हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राजस्थान के संबंध में आप सब लोग जानते हैं कि 60% से ज़्यादा हमारा एरिड और सेमी एरिड रीजन है। ये वो रीजन है जहाँ पे कोई इंटरनल ड्रेनेज नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल इंटरनल ड्रेनेज का रीजन है। कोई भी पानी यहाँ पे गिरता है तो वहीं कहीं विलुप्त हो जाता है, बाढ़ भी आती है तो वहीं कहीं पानी एकोमलेट हो जाता है। तो बाकी जो अरावलीज जो हैं, जो कि हिंदुस्तान की जल विभाजक के तौर पर जिनको लिया जाता है, और ईस्ट की जो जितना भी पानी होता है वो बनास के माध्यम से या चंबल के माध्यम से बह के बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो और यहाँ पे राजस्थान के अंदर पिछले समय में जो डिजास्टर्स बढ़े हैं, वो हीट वेव, कोल्ड वेव, ये सब चीज़ें तो हैं, ओलावृष्टि बढ़ी है, वज्रपात बढ़ा है, टिड्डियों के हमले हमारे यहाँ पे बढ़े हैं, और ये जो सारी चीज़ें, फायर एक्सीडेंट्स बढ़े हैं, जंगल की फायर हमारे यहाँ पे होने लगी है। नो डाउट कोरोना और ये सब चीज़ें तो क्या कहें, इसके अलावा डेंगू एंड ये सारी चीज़ें भी जो हैं, ये भी इसके अंदर हमें काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही है। तो दीज आर द डिजास्टर्स। और एक रिपोर्ट अभी आई है जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है राजस्थान के संदर्भ में, और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा के संबंध में, कि पिछले 20 साल का रिकॉर्ड जो लिया गया है, एंड दीज आर ऑल एडिशन टू कोरोना। कोरोना इज अ वेरी शॉर्ट फेज अभी जो चल रहा है, पर इसके अलावा जो दूसरे डिजास्टर्स पैरेलल चल रहे हैं, वो भी उनको ऊपर भी हमें देखने वाली सोचने की बात है। कि पिछले 8 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर पिछले 20 साल में 16 बार, 13 से 16 बार वहाँ पे सूखा पड़ा है, और 12 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 9 से 12 बार सूखा पड़ा है। यानी कि आधे से ज़्यादा राजस्थान ऐसा है कि जिसमें पिछले 20 साल के अंदर alternate ईयर में यहाँ पे सूखा पड़ा है। दिस इज एन वेरी अलार्मिंग एंड दिस टू बी टेकन केयर ऑफ। नो डाउट वी डोंट हैव फ्लड अफेक्टेड जोन्स इन राजस्थान, बट उसके अलावा हमारे यहाँ पे सिटी फ्लड्स बढ़ गए, अर्बन फ्लड्स जो हैं, जयपुर में हुआ, बाड़ा में हुआ, उदयपुर में हुआ, अजमेर में आपके यहाँ हुआ बाढ़, जो अर्बन फ्लड्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, और उसके बाद बहुत सारी जो है कैजुअलिटीज और एक्सीडेंट हैं, वो सब चीज़ें होने लगी हैं। इसी के हिसाब से जो वल्नरेबिलिटी है पानी को ध्यान में रखते हुए, जिस बारे में मैं कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अलार्मिंग स्टेट जो है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की है, और कुछ कर्नाटक के पार्ट हैं। तो ये द वाटर मैनेजमेंट एस्पेक्ट इज टू बी टेकन वेरी केयर ऑफ। नो डाउट अभी हम एक बहुत दूसरे फेज से चल रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब चीज़ों को भी देखने का है। जिस इंडिया की मैं बात कर रहा था, आपको पहले स्लाइड दिखाई थी कि वी आर 85% क्लाइमेटिकली जो हमारे जोन्स में आते हैं,
बट इंडिया के हैजार्डस के हिसाब से 57% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज हैजार्डस या वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। 16% सूखे से है, 12% बाढ़ से है, 8% तूफान से है। अभी वाले जो इफेक्टेड होंगे वो अभी जो तूफान आ रहा है उसके कारण आएगा, प्लस 3% लैंडस्लाइड जो हुआ है, जिसमें चमोली का इंसिडेंट जो है लेटेस्ट जो आ रहा है। बट जो जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि हम राजस्थान के संदर्भ में हम किस चीज़ के लिए हम वो चीज़ें इम्पैक्ट में आते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अभी। मेरा जो लास्ट पोर्शन जो है वो दैट इज कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था, जिसके अंदर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ऊपर बात की गई थी, जिसके बेसिस के ऊपर संयुक्त राष्ट्र ने हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे। वो इसलिए बनाए थे कि वो हमारे लिए बहुत ही था कि इस तरह जटिल बनाया जाए जिससे कि जो सामूहिक प्रयास किए जाए, विश्व के सारे जो देश हैं वो मिलके इसके ऊपर बात करें। 2015 के अंदर जो पेरिस समिट हुआ था, जिसमें 192 कंट्रीज ने साइन किए थे, और उस सबका ये एक ही उद्देश्य था कि हम सब लोग मिलके जो डिजास्टर्स हैं, अर्थक्वेक है, फ्लड है, ड्राउट है, साइक्लोन्स हैं, इन सबको मिलके एक साथ इसकी सारी जानकारी लें और उसको करें। खास तौर से भोजन की दृष्टि से, लोगों को रहने के हिसाब से, आर्थिक दृष्टि से, बच्चों के स्कूल और उनके हिसाब से, और प्रशासनिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि हम इन सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज करेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। प्लस इसके लिए जो मानव विकास के जो स्तंभ रखे गए वो यही था कि इन सबको बिना भेदभाव किए निष्पक्षता से हम ये सारे जो हैं इन सब चीज़ों को करें। यही कारण है अभी कोविड के समय में जो सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि हमने पहले 70 देशों को हमारे वैक्सीन भेज दिए थे, ये अज्यूम करते हुए कि हमारे यहाँ सेकंड वेव इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आएगी। बट दिस वॉज पार्ट ऑफ इट। निष्पक्ष होते हुए हम जिनको मदद कर सकते थे हमने कर दिया। हम जो उत्पादकता है उसको हम कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें 10,000 साल लगे 200 हमारी जनसंख्या को 200 करोड़ करने में, और हमें सिर्फ मात्र 150 साल में हमारी जनसंख्या जो है 2050 तक अगर हम लगाते हैं ये 900 करोड़ हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए संसाधन कहाँ से आएंगे? भोजन है या उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, मकान है, हर एक जने को चीज़ें चाहिए। ये जो जिस ग्लेड के बारे में मैं जो बात कर रहा था आपको, हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं, आगे जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, और उसके लिए इतने लोगों के लिए खाना और भोजन और संसाधन कहाँ से आएंगे? प्लस एक दूसरे को सहयोग करने वाली सुरक्षा, आप सब देख रहे हैं कि कितने असुरक्षित हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो भले ही वो महामारी के तौर पर हो या फिजिकल वॉर्स के हिसाब से हो, वो सुरक्षा किस तरह से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो इसी के हिसाब से जो 17 सस्टेनेबल गोल्स बनाए गए, जिनमें से जिनकी 169 उनके टारगेट्स थे, उन टारगेट्स को इकोनॉमिकली, सोशली और एनवायरमेंटली इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अचीव करना है। और ये अचीव तभी हो पाते जब हम आज की सिनेरियो में भी अगर हम लेते हैं, कोविड के हिसाब से भी लेते हैं, तो ये लोगों के लिए है, उनके इस प्लैनेट के लिए है, ग्रह के लिए है, और उनकी प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से, गरीबी उन्मूलन के हिसाब से, और इस पृथ्वी के ऊपर शांति लेके आने के हिसाब से, ये सारी चीजें थी, ये इसी का ही एक पार्ट बनती है। इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें की गई कि हाँ हमें इस चीज को देखना है। और सतत विकास जो चीज है कि वो इकोनॉमी और सोशोलॉजी अगर दो चीजें भी हो जाती हैं तो वो तीसरी जो एस्पेक्ट है उस चीज को, पर्यावरण एस्पेक्ट, वो गायब हो जाता है। उसको भी ध्यान में रखने वाली बात है कि हमें तीनों चीजों को, तो समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, इन तीनों को साथ लेके चलना है। और अगर ये तीनों साथ नहीं चलती हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव इसका परिस्थिति की तंत्र के ऊपर पड़ता है, इकोलॉजी के हिसाब से, भले ही वो पानी के ऊपर हो या पशुधन के ऊपर हो, हमारे भोजन के ऊपर हो या कोई निर्माण कार्य के ऊपर हो, कोई भी ऐसी चीज हो, ऊर्जा से संबंधित हो, उन सब चीजों के ऊपर वो प्रभावित करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, कि उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए पिछले साल 28 ऐसे प्रोग्राम थे जिनके ऊपर उन्होंने बहुत ही रिलीजियसली काम किया। भले ही दवाई पहुंचाने के हिसाब से था, या ये कोविड के हाल की बात कर रहा हूँ मैं, कि टूरिज्म को करना था, साथ में बहुत सारे पुराने प्रोग्राम चल रहे थे HIV एड्स वगैरह के, उनके ऊपर ध्यान रखने वाली चीज थी। उद्योगों को किस तरह से लेकर जाए, जो मानव संसाधन है, ह्यूमन राइट्स हैं, या स्पेस एप्लीकेशन प्रोग्राम से उनको कैसे किया जाए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम से उनको किस तरह से किया जाए, साथ में एनवायरनमेंट को देखना है, बच्चों के एजुकेशन को देखना है, और
ये सारे चीजें जो थी 28 प्रोग्राम पैरेलल चल रहे थे हमारे यहाँ पे इन सब चीजों के हिसाब से, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसी तरह से एक 2020 में भी प्रोग्राम बना था जिसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का नाम दिया गया था, और उस समय ये 8 गोल्स थे और उसको बाद में बढ़ा के 17 कर दिया गया। ये प्रोग्राम भी थे, ये गरीबी उन्मूलन के ऊपर थे, भुखमरी के ऊपर थे, और जो स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम थे, गुणवत्ता के ऊपर थे कि हम एजुकेशन की गुणवत्ता किस तरह पे दे पाएंगे, हम महिलाओं और बालिकाओं की सशक्तिकरण के ऊपर था ये प्रोग्राम। ये सारे लिस्ट 17 जो प्रोग्राम है सारे के सारे इसी के ऊपर है। स्वच्छता के ऊपर था जिसमें अभी, और इन सारे प्रोग्राम्स के बेस के ऊपर ही हमारे भारत सरकार और राजस्थान सरकार के प्रोग्राम बेस्ड हैं। अभी मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊंगा कि आप इमेजिन करेंगे स्वच्छता मिशन जो हमारे यहाँ चल रहा है वो इसी के बेसिस के ऊपर है, यूएन का गोल है। प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना है वो उसी के पीछे है। गरीबों को भोजन देने की बात है, जो हमारे यहाँ इंदिरा रसोई योजना वगैरह चल रही है वो सब इन्हीं के बेसिस के ऊपर है। ये अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर है, लोगों को मकान किस तरह से मिलेगा। कन्वेंशनल एनर्जी के ऊपर जो बात चल रही है कि हमें जो हम CO2 इमिशन जो है और मीथेन इमिशन जो है इंडिया का, मतलब 58% हमारी बिजली जो है वो कोयले से उत्पादन होती है। अगर कोयला नहीं जलेगा तो CO2 लेवल हम कैसे कम करेंगे? वो उसी का ही परिणाम है कि हम सोलर और विंड एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा हमारा ध्यान एकत्रित कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो इन सब चीजों के ऊपर जाएं और वो ये कार्य करें। बाकी इसी तरह जो 17 गोल्स जो हैं उनमें शहरीकरण के ऊपर है, जलवायु परिवर्तन के ऊपर है, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है, और असमानता जो हो गई है उस चीज को कम किस तरह से किया जाए। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पिछले ये जो कार्यक्रम 15 में प्रारंभ हुआ था, इस 15 के अंदर जो 17 जो मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया इन सब के अंदर सबसे ज्यादा जो कार्य हुआ है वो साउथ ईस्ट एशिया में हुआ है, जिसमें भारत भी आता है। नो डाउट हमारे ये सारे के सारे प्रोग्राम लगते हैं। यूरोप की कंट्रीज, भारत अभी भी बहुत पीछे है, 117वें नंबर के ऊपर आता है इन प्रोग्राम्स को अचीव करने के लिए। बट सबसे जो बड़ी चीज जो है कि हम इनके ऊपर काम कर रहे हैं। स्वच्छता मिशन यूरोप के किसी भी कंट्री को नहीं करना है, हमें करना है। मेडिकल हेल्थ की सुविधाएं हमें चाहिए, उनको नहीं चाहिए। हमें आवास व्यवस्था हमें करनी है, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम हमें चलाने हैं, उन लोगों को नहीं चलाने। उनको तो सिर्फ कुछ एक प्रोग्राम जो एनवायरमेंट रिलेटेड है या ओशन रिलेटेड है, जिन चीजों को उन्होंने खराब कर दिया उनको सुधारना है। बट ये जो गोल्स जो मेनली हैं वो एशियन कंट्रीज और एशियन डेवलपमेंट के ऊपर ही है। जैसे मैंने बताया कि हमने 61 अचीव किया। स्वीडन ले लीजिए, स्वीडन के अंदर स्वच्छता प्रोग्राम नहीं चलाना है। डेनमार्क को कोई भी आवासीय कॉलोनी नहीं बनानी, दे आर ऑलरेडी स्मार्ट सिटी प्रोग्राम नहीं चलाना, वो दे आर ऑलरेडी स्मार्ट। ये जो चीजें हैं उसमें रही है। नो डाउट हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं 2020 के अंदर हम लोग पीछे रहे हैं, बट हमें कुछ में फायदा भी हुआ है। जैसे क्लाइमेट एक्शन प्लान था जो हमने बनाया, और लैंड रिकॉर्ड्स और उनके ऊपर जो काम हुए, ये हमारे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट रहे। इन सब चीजों को करने के लिए भारत सरकार की 18 ऐसी मंत्रालय हैं जो कि लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे कोविड के अंदर सब सारे के सारे हमें मदद पहुंचा रहे हैं। भले ही वो उद्योग हो, स्वास्थ्य हो, प्रशासनिक हो, वित्तीय हो, ऊर्जा हो, ग्रामीण विकास हो, विज्ञान और तकनीकी विभाग हो, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट मिलके गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये जो गोल्स मैंने आपको बताए उनके अंदर बहुत सारों के अंदर हम लोग आगे रहे हैं। इकोनॉमिक, सोशल एंड बायोलॉजिकल जो फीचर्स रहे हैं उसके हिसाब से आगे रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जो बहुत लीडिंग हैं, खासतौर से दक्षिण भारत के स्टेट जो हैं जिन्होंने गोल्स को बहुत अच्छी तरह से अचीव किया है। बट कोविड के कारण इन बहुत पिछड़ गए हैं, क्योंकि आपने मैप में देखा ये वो रीजन है जहाँ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कोविड का इस रीजन के ऊपर रहा है। तो इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो मेरा मेन जो था वो शिक्षा, एजुकेशन और लिंग अनुपात समानता जो उसको दूर करने के लिए था, स्वच्छता, कल्याण और जनसंख्या जो वृद्धि हुई है उसको इम्प्रूव करने के हिसाब से था, ऊर्जा और कम्युनिकेशन जो सतत उद्योग है उसके इम्पोर्टेंस देने के लिए है, क्योंकि आज की तारीख में कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ग्राउंड वाटर और जो सी लेवल राइज है या पॉल्यूशन है सी लेवल का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे 50% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत जल्दी शहरों के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोविड केसेस जो हैं वो शहरों के अंदर हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय के अंदर उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था, जैसे आज की तारीख में हम ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं या हम हॉस्पिटल बेड्स के लिए जूझ रहे हैं, इन सब सुविधाओं को हमें
अपने स्तर के ऊपर देखना पड़ेगा। डिजिटाइजेशन जो है, क्रांति जो आई हुई है, उस चीज को किस तरह से हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को देखते हुए जो हमारे भारत सरकार के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, भले ही वो डिजिटाइजेशन के प्रोग्राम हो या कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हो, रोड प्रोजेक्ट्स हो, हमारे यहाँ मेक इन इंडिया हो या मेड इन इंडिया हो या हेरिटेज प्रोग्राम्स हो या स्मार्ट सिटी प्रोग्राम्स हो या अटल मिशन हो या आवासीय योजना हो, सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं, ये प्रोग्राम्स राज्य के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर चल रहे हैं। राज्य के अंदर ऐसे 35 प्रोग्राम चल रहे हैं जो इन सब चीजों के ऊपर चल रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट जो शुरू हुआ है स्वास्थ्य को देखते हुए चिरंजीवी योजना, जिसके ऊपर मैम ने बताया था, वो भी उसी का ही एक पार्ट बनता है। तो ये सारे के सारे इन सब के पीछे पॉलिसीज बनी हुई हैं, पॉलिसीज बन रही हैं, भले टूरिज्म के हिसाब से हो, सोलर के हिसाब से हो, अर्बन के हिसाब से हो, वाटर के हिसाब से हो, और जो गुड गवर्नेंस के हिसाब से हो, ये सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं वो इसके हिसाब से बन रही हैं। तो मैं सेशन को यहीं पे एंड इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम मैंने एक्सीड कर दिया है एंड आई हैव गॉन ahead of the time, but I think the session was useful and had given you some knowledge on the things which are going around us, because COVID is not that बहुत सारे भी डॉक्टर्स के ऊपर बोलेंगे, बहुत सारे क्लिनिक्स के ऊपर बोलेंगे, so I have just given you this general idea of the surrounding things which is going around us. Thank you very much. Any queries and questions can be answered. Over to you, Sabia ma'am. Any questions? Any questions? Bhavna Rathore, she wants to ask. You can ask Bhavna. Bhavna, thank you का है. Okay, thank you. Anyone? चलिए मैम, सो नाइट्स ऑफ यू, बहुत सारे लोगों से आपने मिला दिया, अनीता मैम से मिला दिया, मनोज जी हैं आज इसमें जुड़े हुए, कंदा मैम भी थी जिनको मैं जानता हूँ, एंड और तो मुझे अभी तक कोई दिख नहीं रहा. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Have a nice. Thank you. Good luck for your. Thank you, बहुत बढ़िया. Thank you sir. हाँ, थैंक मनोज सर, आपको थैंक यू कह रहे हैं, बहुत बढ़िया. हाँ, अच्छा, प्रीति भी है, वेरी गुड. हाँ, कल्पना भी है, कल्पना भी है. अच्छा, कल्पना मैम. अच्छा, कल्पना मैम. हाँ. Thank you. Very nice sir. Actually, the link was not provided. It will be provided, and then it was so busy. एकदम वो हुआ ना. Thank you, Ripunjay sir, for giving such informative lectures about the policies, COVID as a disaster, and I think we will need you more. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you to all the audience, and Thank you, ma'am. tomorrow's session we are going to meet Okay, thank you, Kalpana. at 11 a.m. Okay, tomorrow we are going to meet, and thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Ripunjay Singh sir. Thank you. Thank you. Okay. Okay. So it's over, and we are going to proceed tomorrow.